Hello friend, how are you? Welcome to Tripan Study Center. Today we are going to do the chapter of social science and highlighting each and every point of it. Let's see what is our topic today. The Gupta Age. The Gupta is the most important period time here. The period here 319 AD to the 550 AD. There is the most important period time here. The rise of Gupta power in the 4th century AD and marked there is beginning of the new era in Indian history. Confusion is a political disunity. Disunity there is where replaced by the integrated. Under the leadership and patronage of the powerful Gupta marches is a considerable a process was made in a different aspect of Indian life. There was also a high material posterity and mentioned by the Farhan and Chinese travel to 4th to 5th century AD. There is the Farhan is the Chinese travel. There is the most important common Gupta Asia. Maharaja Sri Gupta is said to be the founder of the Gupta dynasty. There is a Maharaja Sri Gupta, the founder of Gupta dynasty. He was succeeded by the Ghatotkacha Gupta. Ghatotkacha Gupta is a Chandragupta I is here of 390 to 355 AD, who assumed the title of Mahadhiraja. Mahadhiraja is the most important title taken here. Was the first important Gupta march is there. Another important Gupta empire was the Samudragupta. Samudragupta is the most important in this time. The anthologies are composed by his court and poet Hari Sen. The quote here the Hari Sen, which is available of the Allahabad pillar inscription. Give a view account of Samudragupta as a military exploit. Besides began to grade a conquerors and the ruler, there also was a poet, high order, patrons of art and learning, and a musician. He also performed the Asmaveda Yojana. There is a Asmaveda Yojana, symbol of empirical authorities. Samudragupta was succeeded by the Chandragupta II. There is a period time here 380 to 415 AD, and who assumed there is a title of Vikramaditya. The Vikramaditya after the victory over to the Shaka ruler of Western India. In other considerable dated this power, Samudragupta made important matrimonial alliances. His daughter, the Prabhavati, was the married to be a Vakataka ruler Rudrasena II. Vakataka ruler Rudrasena II, and the son and the successor of Chandragupta II and Kumar Gupta I. There is a period time here 415 to 455 AD. And was a resign was the market with the pace and pivot. He was succeeded by his son Sakand Gupta. Second Gupta, there is a period time here 455 to 469. There is a most important period time AD here, who replies to the Hun invention several times. The successor of the second Gupta is a Puru Gupta, Buddha Gupta, and is a Narasimha Gupta. There is a most important here. They are not so powerful and competent. Is a gradually is lead to be declined and fall the Gupta Empire. Monarchy was the prevailing system of government during to Gupta as the king was assisted by the counselor of minister and other official day-to-day administration. The Gupta had a powerful army and the provinces were ruled by governor. The governor had under them a number of officers who is administrated is a district and the town. Village administration under the village headman is called to the Gharmika. I enjoy the considerable authorities. And the Gupta also developed is an efficient system of judiciary and revenue administration here. देखिए यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है गुप्त काल। देखिए गुप्त काल काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था और ये 319 ईस्वी पूर्व से लेके यानी एडी से लेके 550 एडी तक चला। ये काफ़ी महत्वपूर्ण काल था गुप्त काल और इसमें बहुत ही जो है बदलावों को हमने देखा।
तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ चर्चा जो होगी संक्षिप्त होगी, हमने अधिक लंबा चौड़ा नहीं करना है, बहुत ही शॉर्ट करने हैं, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी रहेगा। कहते हैं अगर हम बात करें गुप्त काल की, तो कहते हैं 14वीं शताब्दी में गुप्त वंश का उदय भारतीय इतिहास में एक नए युग की जो है शुरुआत को जो है रेखा अंकित किया जा सकता है। और श्रम और राजनीतिक जो है फूट की जगह एकता ने ले ली। यानी पहले के समय में श्रम और राजनीतिक फूट थी, अब जो गुप्त काल में जो है एकता ने उसकी जगह पर ले ली। शक्तिशाली गुप्त राजाओं के नेतृत्व में संरक्षण में भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ। यानी हर क्षेत्र जो है काफ़ी विकास किया। चीनी यात्री अगर फरियान की बात करें तो 4वीं-5वीं सदी ईस्वा पूर्व के अनुसार उस काल में खूब खुशहाली थी, चारों तरफ जो है खुशहाली भरी पड़ी थी। तो गुप्त काल में जो है काफ़ी लोग जो थे प्रसन्न थे। महाराजा श्री गुप्त के जो है गुप्त वंश का स्थापक बताया जाता है, क्योंकि महाराजा श्री गुप्त ने जो है गुप्त वंश का स्थापना किया था। और इसके बाद जो है घटोत्कच गुप्त आया। लेकिन यह चंद्रगुप्त जो कि 319 से लेकर 355 ईस्वी था, जिसने महाराजा अधिराज की जो है पदवी अपनाई और पहला जो है प्रसिद्ध जो है गुप्त राजा बना। समुद्रगुप्त अन्य प्रमुख जो है गुप्त सम्राट था और उसका बेटा और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त जो कि 335 से लेकर 380 बड़ा ही पराक्रमी था। यानी पराक्रमी था, काफ़ी जो है वैभवशाली भी था। इलाहाबाद स्तंभ में जो है समुद्रगुप्त की प्रशंसा में दर्ज उसके दरबारी कवि हरिसेन के जो है प्रसिद्ध गीत में उसके विजय अभियानों को जो है जीवंत चित्रण भी देखने को मिल जाता है। एक महान विजेता और शासक होने के साथ ही समुद्रगुप्त एक विद्वान और उच्च स्तर का कवि भी था। साथ में कला और विद्या का संरक्षक और संगीतज्ञ भी था। कहते हैं उसने जो है अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि 380 से लेकर 415 ईस्वी तक उत्तराधिकारी बना। उसने पश्चिम भारत के शक शासकों पर जो है राजाओं पर जीत हासिल करने के बाद उसको विक्रमादित्य की उपाधि भी अपनाई। तो देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का जो है उपाधि धारण किया। यानी विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कह सकते हैं। उसने महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। उसकी बेटी प्रभावती का विवाह वटक के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ भी हुआ था और उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा कुमार गुप्त प्रथम था, जो कि 415 से लेकर 455 ईस्वी तक बना रहा। उसके शासनकाल में शांति और खुशहाली काफ़ी थी। उसके उत्तराधिकारी उसका बेटा सिकंदरगुप्त जो कि 455 से लेकर 467 ईस्वी तक बना। उसने कई बार हुन आक्रमण भी विफल किए। यानी हुन ने जो इस पर आक्रमण किया था उसको जो है विफल किया। किसने किया? सिकंदरगुप्त ने किया। सिकंदरगुप्त के उत्तराधिकारी जो थे बहुत 3 थे। इसमें पुरुगुप्त भी थे, बुधगुप्त भी थे और नारायण गुप्त भी थे। उसने जो है शक्तिशाली और योग्य नहीं थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट था कि सिकंदरगुप्त के उत्तराधिकारी बहुत ही कमज़ोर थे और इसे धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन भी हो गया। देखा जाए तो गुप्त काल के दौरान राजतंत्र प्रशासन की जो प्रणाली थी, राजाओं के जो है दैनंदिन प्रशासन में मदद के लिए एक मंत्री परिषद के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल हुआ करते थे। गुप्तों के पास शक्तिशाली सेना थी और प्रांतों का प्रशासन गवर्नर करते थे। उनके महतः अनेक अधिकारी होते थे जो जिला और नगरों का प्रशासन संभाला करते थे। ग्राम प्रमुख के ग्रामीण नेतृत्व में जो है ग्राम शासन के उल्लेखनीय स्वायत्ता हासिल भी की थी। गुप्त साम्राज्य ने न्यायिक और राजस्व प्रशासन की एक प्रभावी प्रणाली विकसित कर ली थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय के दौरान।